Good morning, students. Today we will study our 14th chapter of science, and the name of our chapter is electric current. In this chapter, we will study about various things related to electric current, like what is electric current, various units involved in electric current, okay, various type of circuits, various types of gadgets, appliances, uh, various applications of electric current we will study in this chapter. So let's begin our chapter. So what is electric current? Generally, our first topic is electric current. So the question arises, what is electric current? So generally, electric current, or it is also said as electricity, is nothing but the flow of electric charge through a conductor. So uh, when electrically charged particles flow through a conductor, then that flowing charge is known as electric current. Okay, so we can say that electric current is a phenomena uh, which contain charges, okay, positively or negatively charged particles. Okay, these charged particles are known as electric current. Okay, and one thing about the electric current, that to flow a electric current, always a medium is needed, always a conductor is needed. We will discuss later what are conductor. Okay, so for the flow of electric current, we always need a conductor. Now it has various effects on different materials. In previous class, you have learned that the heating and magnetic effects of electric current. So on different materials, it has different effects. So means we can say that electric current has different effects on different materials. Okay, and we have already learned in our previous classes about heating and magnetic effects of electric current. That means what are heating and magnetic effects of electric current? Let me revise you, let me recall. So heating means whenever whenever current is flown through any device, then that device produces heat. This is known as heating effect of electric current. Means due to flow of electric current, all heat is produced. Okay, this is heating effect of electric current. And magnetic effect of electric current is that कि whenever a electric current is flown through a material, then that material acts like a magnet. Means it starts attracting to attracting metals, etc., towards itself. So this is known as magnetic effect of electric current. That means we can say that uh, during the flow of electricity, magnetism is produced. This is known as magnetic effect of electric current. Now in this chapter we will learn about chemical effects of electric current. So heating and magnetic effects we have already learned in our previous classes. Now we have to learn about chemical effect of electric current. So let's begin. Conductors and insulators. First the word came conductor and insulator. So let me tell you what are conductors and insulators. So conductors are generally those materials or devices through which electric flow of electric current uh, is determined easily. Means we can say that conductors are those devices through which we can electric current can easily flow. The devices which allow the passage of electric current or the flow of electric current easily are known as conductors. And what are insulators? The appliances or the material which does not allow the flow of electric current are known as insulators. Generally, कंडक्टर मीन्स ऐसी डिवाइसेस या ऐसे मटेरियल्स जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं, ठीक, फ्लो अलाउ करें इलेक्ट्रिसिटी का, दैट वो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं. एंड इंसुलेटर्स जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलाउ नहीं करते हैं, दोज मटेरियल्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. ओके, एग्जाम्पल है कंडक्टर्स के जितने भी मेटल्स हैं, लाइक आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स बिकॉज through them electricity can flow easily. And examples of insulator like stone, wood, plastic, all these are examples of insulators because through them electricity cannot flow. Okay. Now
Electric tester. What is electric tester? So it is a device through which we measure whether an substance or material is a conductor or not. Uh, Generally इलेक्ट्रिक टेस्टर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक टेस्टर हम ये बताता है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है. जिस भी मटेरियल में हम उसको टच करते हैं तो पता लगता है कि वो मटेरियल कंडक्टर है या नहीं. यदि कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिक टेस्टर विल लाइट अप, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज कंडक्टर. और यदि इलेक्ट्रिक टेस्टर लाइट अप नहीं होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है, सो इट इज अ इंसुलेटर. So this is the electric tester. Now liquids, conductors of electricity. Now we will study various conductors of electricity. So first one is liquids. All the liquids are the conductors of electricity. Various liquids are also the conductors of electricity. So let us learn about them. Which all liquids are the conductors of electricity? Like for example, water is a good conductor of electricity because water is also a liquid and through it electricity can easily pass. So we can say that water is a good conductor of electricity. So similar to solids, some liquids also conduct electricity. Solids like iron, aluminium, copper, through these electricity can be easily flown. Means जैसे हमारे घर में जो वायरिंग वगैरह होती है वो सब कॉपर की वायरिंग वगैरह होती है ना, ये कॉपर एल्यूमिनियम, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है हमारे पूरे सर्किट में. ठीक है. तो उसी प्रकार जिस प्रकार से सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, सम सॉलिड्स में, सभी में नहीं, उसी प्रकार सम लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या कह सकते हैं कुछ लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. ठीक है. और टेस्टर का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, या विच लिक्विड आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. So to conduct the electricity, to detect whether an liquid is conductor or not, we need some material. So you can check in your home. One, two or three cells joined in a series means a battery consisting of 2 or 3 cells. Then uh, we need wire and we need a tester and for testing a liquid. Okay. After this we can check whether the liquid conducts electricity or not. So here is the definition. The liquid that allow electric current to pass through them are called conducting liquids or electrolytes, while the electrical conduction through them is called electrolytic conduction. So ऐसे liquid जो अपने से electricity को flow करना allow करते हैं, ठीक है, which can allow the passage of electricity through them are known as conducting liquids. Okay. या इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. ठीक है. और जो ये उनके जब लिक्विड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं. द टाइप ऑफ कंडक्शन विच पासेस द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. ओके. एंड थ्रू विच liquid the electricity passes, that liquid is known as electrolytes or conducting liquids. Okay, clear? Now let's move ahead. However, there are certain liquids that do not allow electric current to pass through them. Such liquids are called non-electrolytes. और ऐसे भी बहुत से लिक्विड हैं जो अपने से लिक्विड को, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं, अपने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं. ऐसे लिक्विड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं या नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स कहलाते हैं. ठीक है. क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं वो. ठीक है. एग्जाम्पल है ऑयल. Okay. Various liquids are there which do not conduct electricity through them. Okay. This is electrolytic conduction and non-electrolytic conduction, or electrolyte or non-electrolyte. Okay. Now light emitting diode, LED. Okay. So we will study about uh, now light emitting diode which is called as LED. तो आपने अपने सभी के घरों में आजकल LEDs बल्ब यूज हो रहे हैं वेरियस में, क्योंकि ये एनर्जी सेविंग बल्ब्स होते हैं. तो these are known as LEDs, or full form of LED is light emitting diode. Okay. So when a tester with torch bulb is connected in a conducting liquid, the circuit is completed and the bulb light glows up. तो जब एक टेस्टर या जिसमें टॉर्च बल्ब लगी होती है, वो एक जो कंडक्टिंग लिक्विड से क्या किया जाता है, उसमें टेस्ट किया जाता है, उसमें डिप किया जाता है,
तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और बल्ब क्या होने लगता है, जो टेस्टर का बल्ब है वो जलने लगता है। ठीक, बिकॉज द फिलामेंट बिकम्स हॉट इनफ टू ग्लो, क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जब टेस्टर ने एब्जॉर्ब किया तो उसके जो टेस्टर में जो बल्ब लगा रहता है उस बल्ब को पर्याप्त हीट मिल जाती है ग्लो करने के लिए, तो वो ग्लो करने लगता है और हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। Now when the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not completed and the bulb does not glow। और जब कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देता है तो जो इलेक्ट्रिक टेस्टर का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है और इसलिए बल्ब फिर नहीं जलता है। ठीक है, इन सम केसेस इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट इज कंप्लीट बट द करंट पासिंग थ्रू इज वीक। कई बार तो ऐसा होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है लेकिन बल्ब तब भी ग्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत वीक है। ठीक, बहुत लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि वो बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रही है। जैसे घर में भी आप लोगों ने कभी देखा होगा, लाइट कभी कभी वेरी डिम हो जाती है, कि जो हमारे बल्ब्स हैं जनरली जो 100 वाट्स के बल्ब्स हैं वो बिल्कुल स्लो जलने लगते हैं, वेरी डिम जलने लगते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लियंसेस हैं वो नहीं उठते हैं, ना कूलर चलता है ना फैन चलता है, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर ही नहीं होती है। कभी कभी घरों में ऐसा होता है। तो जनरली जितने भी अप्लियंसेस हैं इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उन सब की एक कैपेसिटी होती है और उतनी ही कैपेसिटी में वो रन करते हैं। तो जब वो कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती है तो दे डू नॉट रन। सो सिमिलरली कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से टेस्टर का बल्ब नहीं जलता है। कई बार इलेक्ट्रिक तो हो जाता है लेकिन जो कंडक्टिंग पावर है वो बहुत लो होती है इलेक्ट्रिसिटी की उस लिक्विड में, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके, कीप इन माइंड दिस थिंग। एट सच टाइम द बल्ब में नॉट ग्लो बिकॉज द फिलामेंट में नॉट गेट, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कई इस समय बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि उतनी अमाउंट में उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं बल्ब को जिससे उसका फिलामेंट हीट अप हो सके एंड ग्लो कर सके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा, जो लिक्विड है हमारा, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सिंपल सी बात है, हम टेस्टर से ही डिटेक्ट करते हैं कि वो कोई चीज़ कंडक्टर है या नहीं, जस्ट वी हैव लर्न। सो इन दो सिचुएशन जहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर द लिक्विड इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट हैपेंस, ठीक है, सो to get rid of these problems we can use light emitting diodes LEDs। ठीक है, क्योंकि ये इवन वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी ये ग्लो करते हैं। इनसे अगर वेरी वीक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है तो दे कैन ग्लो। ओके, सो बिकॉज दे आर वेरी लो कंज्यूमिंग अप्लियंसेस, सो ये लो इलेक्ट्रिसिटी, वेरी लो इलेक्ट्रिसिटी में भी ये ग्लो करते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल हम लोग अपने घरों में एलईडीज का यूज करते हैं ताकि बिजली बिल हमारा कम आए, ठीक, लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो। सो दिस वाज लाइट emitting डायोड। Now, in case of torch bulb, the terminals can be connected to any pole of the battery, but one has to be careful about the polarities of a battery while using LEDs. An LED normally comes with two wires that are called leads, one of which is longer than the other. The longer lead has to be connected to the positive terminal. तो जनरली LEDs को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, तो जो जो बल्ब टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च बल्ब है जो, उसके टर्मिनल्स को बैटरी के पोल्स में कनेक्ट करते हैं। लेकिन बैटरी के पोल्स में कनेक्ट करते समय हमें ये बात में ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ें, निगेटिव टर्मिनल की निगेटिव से जोड़ें। ठीक है, उल्टे कनेक्शन नहीं करें, नहीं तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो जो जनरली जो एलईडी बल्ब्स आते हैं उनमें ऑलरेडी दो वायर्स लगी होती हैं। तो जो एक वायर होती है, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। उसमें दो वायर होती हैं, एक छोटी वायर होती है, एक लंबी वायर होती है। ठीक, तो जो लंबी वायर है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमें जोड़नी चाहिए। ठीक है, और जो छोटी वायर है या लीड है उसको हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़नी जोड़नी चाहिए, तभी वो क्या होगा, जलेगा। ओके, कीप इन माइंड। Now, if we take different solutions such as tap water, lemon juice solution, common salt solution, vinegar solution, and solution of acid and alkalis, we will observe that bulb lights up. This means that these liquids are electrolytes। ठीक है, फिर हम जब different types of solutions लेंगे जैसे कि tap water, lemon juice solution, common salt solution, vinegar solution, कई एसिड्स और एल्कलीस के सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो जब हम उसमें बल्ब को लगाएंगे
कंडक्टिंग मीडियम में, तो हम देखेंगे कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, एंड वी विल बी एबल टू डिटरमाइन वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट. इफ द बल्ब विल ग्लो देन it will be electrolyte, and if bulb will not glow then the liquid is non-electrolyte. Generally all the examples which are given above, all are electrolytes, means all are the conductors of electricity. Okay. On the other hand, the bulb does not light up in case of distilled water, petrol, alcohol, mustard oil and kerosene oil. ठीक, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कई ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जिनमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स वो कंडक्टर नहीं होते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, इनमें बल्ब नहीं जलेगा. तो ये क्योंकि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. LED bulbs, it is to be noted that the water which we get from sources such as tap, hand pumps, wells or ponds is not a pure form of solution. Some small amount of mineral salts are naturally present in it. The water is thus a conductor of electricity. ठीक, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो हमें टैप से, हैंड पंप से या वेल से, पॉन्ड से जो पानी मिलता है वो वाटर का प्योर फॉर्म नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन जो ये पानी है इसलिए वो वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसमें ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. यदि वो डिस्टिल्ड वाटर है, मींस विदाउट मिनरल वाटर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. दस वी हैव स्टडीड अबव, सो कीप इन माइंड ऑलवेज. नाउ लेट अस स्टडी. ऑन द अदर हैंड, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड दस इज एन इंसुलेटर. इसलिए जो, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है. ठीक, इंसुलेटर की तरह काम करता है. मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं वो या तो एसिड, बेस या सॉल्ट किसी में से एक का सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. दैट इज यू आर always warned not to touch an electric appliance with wet hands or while standing on wet floor because water is not pure but a solution of salt. ठीक, इसलिए जब भी आपको हमेशा ये वार्निंग दी जाती है कि जब भी आप कहाँ पे हो, पानी के निकट, पानी यदि आपके हाथ वगैरह गीले हों तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास में ना खड़े हों, ना ही उनको टच करें, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और उससे आपको शॉक लग सकता है. वाटर जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्ट के सॉल्यूशन से जो वो कंडक्टर के रूप में वर्क करता है, और जैसे ही आप उसको छुएंगे वो शॉक लग सकता है आपको, इलेक्ट्रिक शॉक. सो it is prescribed to away from the electric appliances while your hands are wet. Now current through human body. uh, how so we humans are also a good conductor of electricity because through our body also current can easily pass, because our अपनी बॉडी में भी लिक्विड होता है. ठीक, ब्लड के फॉर्म में, उसके थ्रू करंट हमारे बॉडी में पास होता है. इसलिए हम जब कभी इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो हमें शॉक लगता है ना, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हाउ करंट flows through human body. So sometimes people accidentally touch the main wire or a faulty electric appliance whose surface is at high voltage. ठीक, कई बार हम लोग गलती से जो मेन वायर है जहाँ जिससे करंट पास हो रहा है उसको छू लेते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज का सप्लाई होता है, और उससे हमें शॉक लग जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि दिस कॉजेज करंट टू फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू द ग्राउंड. क्योंकि इससे जो चार्ज है, जब हम कहाँ पे हैं, जमीन में खड़े हैं, और वो हमने जब उस चार्ज को पकड़ा तो वही चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो होकर के जमीन के चार्ज के साथ मिल गया, और इसलिए फिर हमें झटका लगता है. ठीक, और फिर इसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं. द सीवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड हाउ लार्ज द करंट इज डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग इंक्लूडिंग द वोल्टेज. और शॉक कितना जबरदस्त होगा, कितना तेज होगा, कितना डेंजरस होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक वायर में कितनी वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा था, कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा था, इस पे डिपेंड करता है. अगर लो मैग्नीट्यूड करंट होगा तो नॉर्मल शॉक लगेगा, और हाई मैग्नीट्यूड करंट होगा तो हमारी जान भी जा सकती है. सो ऑलवेज ओके.
सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर अवर बॉडी इज ड्राई और वेट। यदि बॉडी ड्राई होगी तो थोड़ा सा कम शॉक लगेगा, बॉडी वेट होगी तो उतना ही ज़्यादा शॉक लगेगा। ठीक है, सो always be careful while using electrical appliances because our body is the good conductor of electricity. Okay, so to avoid the shocks from the electricity, always take proper precautions and always be careful. Okay, so you can prevent the shocks. Now टैप वाटर, रेन वाटर एंड स्वीट कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस विच हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टैप वाटर, यदि हम गीले हैं तो हमारे शरीर में टैप वाटर हो, या मान लो बरसात से गीले हो तो रेन वाटर हो, या हमारा जो स्वेट है, पसीना है, ये इन सब में डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए जब बॉडी वेट होती है, ठीक है, तो जो करंट है वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड से फ्लो होता है, ग्रेटर स्पीड से फ्लो होता है। ठीक है, और इसलिए हमें गीले पे ज़्यादा झटका लगता है देन ड्राई पे। Okay, now let us study chemical effects of electric current. So what is chemical effect of electric current? So when an electric current is passed through a conducting solution, some chemical changes take place in the solution along with heating. तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन से या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, तो उस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और साथ में वो सॉल्यूशन हीट अप होने लगता है, हीटिंग के साथ साथ उसमें कुछ और केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और ये केमिकल चेंजेस किस लिए हुए हैं? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी या क्यों फ्लो कराया है उससे, क्योंकि वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। दिस इज वाई ये केमिकल चेंजेस हुए हैं, दिस केमिकल चेंजेस हैपेंड। सो the occurrence of chemical change in an electrolyte solution when electric current is passed through it is called electrolysis. तो यही जो फिनोमिना है कि किसी एक केमिकल सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण उसमें आने वाले इलेक्ट्रिक चेंजेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ occurring a chemical change in an electrolyte when electric current is passed through it is known as electrolysis, or in the other words we can say that when an electric current is passed through electrolyte, then there happens some chemical changes, so this process is known as electrolysis. Okay, कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो केमिकल चेंजेस हुए हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। देन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड प्रोड्यूस आयंस। और जब एक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है या जब उसको मेल्ट किया जाता है तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और ये जो आयंस होते हैं ये सॉल्यूशन में सभी जगह पे मूव करने के लिए फ्री होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस एंड द नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। तो यही जो आयंस होते हैं, तो इनमें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं इनको हम कैटायंस कहते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस हमारे क्या कहलाते हैं? एनायंस कहलाते हैं। तो जो केमिकल सॉल्यूशन हमारे एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो जब वाटर के साथ मिलाया जाता है या वो जब उसको मेल्ट किया जाता है तो उसके आयंस ब्रेक हो जाते हैं। तो वो दो टाइप के आयंस में ब्रेक होता है और ये आयंस सारे लिक्विड में फ्रीली मूव करते हैं। तो उसमें दो टाइप्स के आयंस होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज ions and sorry positively charged ions and another one is negatively charged ions. तो जो positively charged ions हैं that are called cations, and which are negatively charged ions that are generally known as cations. Okay, sorry, anions. Positively charged cations and negatively charged anions कहलाते हैं। Okay, now so basically the electrode connected to the negative terminal of the battery is called cathode। और फिर एक उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको कैथोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं। जनरली जो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो ऐसे इलेक्ट्रोड, ठीक, जिनको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं
फिक्स अप करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कैथोड कहलाते हैं, और जिनको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कैच अप करते हैं या फिक्स अप करते हैं वो एनोड कहलाते हैं। ओके, सो रिमेंबर द two types of electrode that are cathode and anode. Okay, so when an electrode is connected with the negative terminal, then it is called as cathode, and when it is connected with an positive terminal of the battery, then it is said to be anode. Okay, now when electric current passes through the electrolyte, it dissociate into positive and negative ions. जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से या इलेक्ट्रोलाइट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है। वन आयन इज पॉजिटिव एंड वन आयन इज नेगेटिव, तो वो दो आयंस में सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयंस में। द पॉजिटिव आयंस और कैटायंस ट्रेवल टू कैथोड, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं या जो कैटायंस जिनको हम कहते हैं, ये कहाँ जाते हैं, कैथोड की ओर ट्रेवल करते हैं, मीन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एंड कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर्ड इनटू न्यूट्रल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद ये यही जो कैथोड जा करके कैथोड से मिल करके वहां जा करके इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद न्यूट्रल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब किसी केमिकल से या किसी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो उसमें दो चार्ज पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है, एंड दो चार्ज पार्टिकल्स आर कैटायंस एंड एनायंस। जो कैटायंस हैं उनको उनको वो जो चार्ज हैं वो जाते हैं कैथोड की तरफ जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर के ये न्यूट्रल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर या जो नेगेटिव आयंस हैं या और एनायंस हैं वो एनोड के थ्रू या एनोड के पास जाते हैं, एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं और वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं और फिर वो न्यूट्रल एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो कैटायंस हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और न्यूट्रल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और जनरली जो एनायंस हैं मीन्स जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, मीन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं और वहां पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिव आयन या जो कैटायंस थे वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सअप होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड में। ठीक, और जो एनायंस होते हैं या जिनको वो एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं और वहां पे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से सेपरेट आउट होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देते हैं और फिर न्यूट्रल एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। दिस इज हाउ this is what happens when electric current flows in a electrolyte. Okay, now in electrolysis the entire arrangement of electrode, electrolyte and the vessel containing them is called an electrolytic cell or a voltmeter. फिर electrolysis की process में जो यही electrode और का जो टोटल अरेंजमेंट है, मीन्स कैथोड और एनोड का जो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट और वेसल कंटेनिंग दैम, उसका जो पूरा ये अरेंजमेंट है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, ये पूरा मीन्स सॉल्यूशन हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, फिर दो इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब जो बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड और एनोड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेसल हो गया जो उसको जिसमें वो जो उन सब चीज़ों को कंटेन करता है, ये सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें चार्ज प्रेजेंट होता है इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं या वोल्टमीटर बोलते हैं। ओके, नाउ इन द अबव इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट, जब इसी इलेक्ट्रोलाइसिस अब जो अभी हमने पढ़ी पूरी प्रोसेस, इसमें जब इसको एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, मीन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जिसमें कॉपर मिक्सअप होता है, तो जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टेक ओवर करती है तो इट गेट डिकम्पोज इनटू कॉपर एंड सल्फेट आयंस। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो दो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। वन इज कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है, सल्फेट के आयंस अलग हो जाते हैं, कॉपर आयंस अलग हो जाते हैं। तो द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स आयरन रॉड विच सर्व्स एज अ कैथोड। तो फिर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हुआ, हमारा कॉपर आयंस और सल्फेट आयन में। तो कॉपर आयन जो है यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे हमारे, इसलिए जब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो हमारे कॉपर के आयंस होंगे तो वो हमारी जो कैथोड की तरफ जा करके
जाएंगे और कैथोड में जाकर के चिपक जाएंगे। एक आयरन रॉड होगी जो कैथोड की तरह एक्ट करती है सॉल्यूशन में, उसके पास जाकर के उसमें मिक्स चिपक जाएंगे। और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयंस थे, जो सल्फेट आयंस थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, वो नेगेटिवली चार्ज आयंस थे, तो वो हमारे एनोड की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कैटायंस क्या है, कॉपर कॉपर आयंस कैटायंस हैं और सल्फेट आयंस यहाँ पे एनायंस हैं। तो एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं और कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं। तो जो कॉपर आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे और जो सल्फेट आयंस हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वो एनोड क्या है, हमारा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, हैंस सर्व्स एज अ एनोड। ओके, सो दिस इज हाउ we can purify copper from its impurities. So this electrolysis is used to purify various metals. Okay, or in other word we can say that by the process of electrolysis various metals are purified. So we can say that it is one of the application of electrolysis. Now let us study one more thing, electroplating. So what is electroplating? So एक एप्लीकेशन है ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, इससे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से कि जो मेटल्स की अलग अलग लेयर हैं, जो इम्प्यूरिटीज में वो बनी हुई हैं, तो वो मेटल अलग अलग लेयर में अलग हो जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज होने के कारण। ठीक है, जैसे कि ऊपर एक्टिविटी में जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर, आयरन रॉड के ऊपर एक लेयर के रूप में चिपक गया जा करके, तो वहां पे क्या हुई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है कि एक प्लेटिंग मतलब ओवर कोटिंग हो जाना इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण। ओके, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ in the process of electroplating, the metal on which coating is to be done should be used as cathode, while the metal to be deposited should be solution of the metal to be coated. ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिस मेटल की हमें कोटिंग बनानी है, जैसे कि अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमें कॉपर की कोटिंग बनानी थी, तो उसको कैथोड की तरह यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, और उसके बाद while the metal to be deposited should be a solution of the metal to be coated। ठीक, और जैसे मान लो यहाँ पे जनरली ये क्या है, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस करते हैं तो लेयर फॉर्म होती है मेटल के ऊपर मेटल की। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन के ऊपर किसकी लेयर फॉर्म हुई थी, कॉपर की लेयर फॉर्म हुई थी। तो इस प्रोसेस के लिए जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी हो, ठीक है, तो उसको हमें कैथोड की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरा मेटल आकर के कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जिसकी प्लेटिंग करनी है, जिसको ओवरकोट होना है, वो हमारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, टू गिव अ कोटिंग ऑफ जिंक ओवर अ कॉपर ऑब्जेक्ट यूज द कॉपर ऑब्जेक्ट एक्स कैथोड। यदि मान लो हमें जिंक के ऊपर कॉपर की कॉपर के ऊपर जिंक की कोटिंग करनी है, तो कॉपर को हमें कैथोड की तरह यूज करना पड़ेगा और जिंक को हमें एनोड एंड जिंक सल्फेट एस एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जिंक प्लेट को हमें एनोड की तरह यूज करना पड़ेगा और जिंक सल्फेट को हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करना पड़ेगा। जिंक सल्फेट क्या है, मिक्सचर है जो सॉल्यूशन में मिक्स किया जाएगा। ओके, दिस इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स। So there are two main reasons for electroplating objects. So ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रोप्लेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके दो कारण हैं। टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, क्योंकि ताकि उसके नीचे जो मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, जैसे आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग से आयरन क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि आयरन में फिर जंग वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, और एक उसको एक अट्रैक्टिव फिनिश देना। ठीक, ताकि वो ऊपर से किसी दूसरी चीज की कोटिंग के कारण जो वो लुक है, लुक अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जनरली मार्केट्स में ये यूज होता है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील स्पून विथ सिल्वर, एक स्टील स्पून को सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए, जितने भी हमारे घर के ये यूटेंसिल्स आते हैं सब इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। ठीक है, तो यदि हमें स्टील स्पून को सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट करना है, अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, तो जो सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की हमें कोटिंग करनी है इसलिए सिल्वर सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह। फिर उसके बाद स्पून को हम, स्पून और सिल्वर वायर आर डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी रेस्पेक्टिवली। और स्पून है और एक सिल्वर बार है, उसको हम पानी उसी सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। ठीक, स्पून को हम बैटरी के
निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे क्योंकि ये कैथोड है, और सिल्वर बार को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे क्योंकि ये एनोड है। और उसके बाद जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो जो सिल्वर है वो आएगा हमारा एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ, दैट इज स्पून की तरफ, ठीक है, और उसके ऊपर कोट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा सिल्वर बार है उसकी तरफ बाकी जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है वो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ एक चम्मच में कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इट इज यूज्ड वेरियसली। So thus I have told the positively charged silver ions move to the negative charge। तो जो पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयंस है वो चम्मच की तरफ जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, और जो उसके बाद सिल्वर की डिपॉजिट उसके ऊपर बना लेंगे और फिर चम्मच में कोटिंग खत्म हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन इन अ सिल्वर स्पून, इन अ स्टील स्पून। नाउ applications of electroplating. Now let us study various applications of electroplating. So it is widely used in industry for coating metal objects of various kind। electroplating का हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, तरह तरह के मेटल्स को यूज करते हैं को कोट करने के लिए, बर्तन वगैरह को कोट करने के लिए, ठीक है, ताकि उनमें जंग वगैरह ना लगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन बाईसाइकिल एंड कार पार्ट्स। जो बाईसाइकिल और कार पार्ट्स हैं हमारे, जैसे जो लोहे के रिम वगैरह होते हैं, इनमें हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो जंग ना लगे उनमें और वो खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद किचन गैस जो बर्नर होते हैं हमारे, उनमें भी कोटिंग की जाती है क्रोमियम की। बाथरूम फिटिंग्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्ट एंड कोरोजन। जिनमें वाटर का यूज होती रहता है, जो जिनमें जंग लगने का खतरा ज्यादा है, तो वहाँ पे क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं जिससे उनमें जंग जल्दी नहीं लगता है, ठीक है। सिंस स्टील एंड ब्रास गेट रस्टेड और कोरोडेड इजिली व्हेन एक्सपोज टू वाटर। जैसे कि जो स्टील है और जो ब्रास है, ये बहुत, इसमें बहुत जल्दी जंग लगती है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इसलिए। और दूसरी तरफ जो क्रोमियम है उसका एक शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है, और एक वो चमकदार अपीयरेंस होता है उसका, और वो कोरोजन नहीं लगने देता है, इसलिए क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है जनरली स्टील और ब्रास के बर्तनों में, यूटेंसिल्स में, आइटम्स में। ओके, तो इससे अच्छा दिखता भी है और लंबा चलता भी है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ सेकेंड, ज्वेलर्स यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू कोट ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल विद गोल्ड और सिल्वर, ठीक। फिर ज्वेलर्स भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। जो गहने होते हैं, जो सस्ते गहने होते हैं, लाइक बेंटेक्स एक्सेट्रा, तो उनमें गोल्ड और सिल्वर की हल्की सी कोटिंग करने के लिए, ताकि वो जो उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी खरीद के पहन सके, तो उसके लिए यही गोल्ड और सिल्वर की जो कोटिंग की जाती है वो भी इसी मेथड से की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से, ठीक है। तो इससे जो होता है कि फाइनली जो प्रोडक्ट है वो कम सस्ता हो जाता है, ठीक, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और ये क्योंकि क्योंकि पूरा गोल्ड सोने या चांदी का नहीं बना होता है, उसमें केवल कोटिंग लगी होती है, तो इसलिए आसानी से सब लोग खरीद पाते हैं। तो ये ज्वेलरी में भी बहुत यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ऑर्नामेंट्स को कोट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ द थर्ड वन, टिन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑफ आयरन। जो टिन कैन है जो खाना वगैरह रखने के लिए स्टोर की जाती हैं, तो वो भी आयरन के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे कि आयरन में जंग नहीं लगता और टिन की प्लेटिंग के कारण खाना भी हमारा प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। नाउ आयरन सीट यूज्ड फॉर बिल्डिंग कार बॉडीज। जो आयरन सीट से कार की जो बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, या ड्रम्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, जिससे ज़्यादा आर्टिकल्स जो आयरन के बनाए जाते हैं उनको भी जंग से बचाने के लिए जिंक की उनमें प्लेटिंग की जाती है। देखो कार वगैरह बरसात में चलते रहती रखी रहती है, जंग नहीं लगती जल्दी उनमें, क्योंकि उनमें जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक की ओवर कोटिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। तो इस तरह से जिंक जो है रेजिस्ट करता है कोरोजन को, तो आयरन हमारा प्रोटेक्ट रहता है, मजबूत भी रहता है और फिर उसमें लंबा चलता भी है, तो यहाँ पे भी यूज होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट इज, ऑल्दो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ यूजफुल टेक्निक यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्रीज। जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही काम वाली टेक्निक है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है, लेकिन
फिर भी ये थोड़ा सा हार्मफुल है, क्योंकि इससे टॉक्सिक केमिकल इसमें जो यूज होते हैं उसके कारण बहुत पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यही फैक्ट्री में जहाँ ये वाइडली यूज होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स का यूज होता है। और फिर जब यही केमिकल्स वेस्टेज के रूप में फैक्ट्री से निकलते हैं और पानी या लैंड से मिलते हैं, तो वो लैंड को पॉल्यूट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमें काफ़ी मुश्किल करते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज़ होता है क्योंकि टाइम की ज़रूरत है। सो this was about the chapter where we have studied various facts related to the electric current. Okay, we have studied the chemical effects of electric current, we have studied what is electroplating, we have studied the applications of electroplating. All these things we have studied in this chapter. In this way our chapter gets completed. Hope you all understood. If you have any doubt regarding your syllabus, you can mention your doubt in our comment section and you will be provided with the solution. Thank you everyone. Goodbye, take care, have a nice day.